welcome to yet another episode of Election Yatra, the Bihar edition. As the political temperatures are soaring and the battle is heating up, we are focusing on seats that will define the elections. And today we are headed to Nalanda, which is more than just a constituency in the Assembly of 243. We are going to Nalanda, which is the Karma Bhumi of Nitish Kumar. Let's go. As we count down to the Bihar elections, the politicians are gearing up for the big battle, and so are we. And when we talk about politics in Bihar, one cannot ignore the city of Nalanda, and that's why today that's where we are headed. Just about an hour's drive away from Patna, the city of Nalanda has for long been associated with Bihar's ancient glory, one that the Modi government is now trying to revive. This was, after all, a renowned center of learning that attracted scholars from all over the world between the 5th and 12th centuries. We have reached Nalanda, and the first thing that comes to your mind when you hear that is the historical significance of this place, the Nalanda University and its glorious past. Well, behind me and all around me, in fact, what you see are the ruins of Nalanda University, which is now a UNESCO World Heritage Site. This is a testament to India's ancient educational excellence. Here once stood the world's first residential university that attracted scholars from all over Asia. This was the center of learning. But ultimately, this city where I'm in today has also served as the platform for the political battle between two visions of Bihar, Sushasana versus Jungle Raj. It is in Nalanda that Nitish Kumar was born, cut his teeth in politics, learned the pragmatism that makes him a master, and held his fort even in the most difficult of times. Even in the 2020 Assembly elections, when Nitish Kumar was part of the NDA, the JDU was reduced to a lowly third position. However, they managed to win 5 out of the 7 Assembly segments in Nalanda district. Nitish Kumar is also known as Sushasana Babu, a tag that he earned for his governance model, welfare schemes for women and marginalized. But then issues like unemployment and the out-migration of the Bihari youth definitely poses a big challenge. In what is being called his last innings by his critics, by the opposition, Nitish Kumar has launched a slew of schemes for women, youth, senior citizens, farmers and laborers. Will it have an impact? Will Nitish Kumar be able to deliver another victory and cement his name in the political history of Bihar? एकदम बनना चाहिए। उस नीतीश जी कर दिए, वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया था, न करेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि तबीयत बहुत खराब चली, तो कोई तबीयत खराब नहीं चल रही। किसका नहीं खराब होता? आपका नहीं खराब होता है, उनका नहीं खराब होता है। सरकार जो चलाती है उसका तबीयत नहीं खराब होता है। सरकार तो IAS अफसर लोग नहीं चलाते हैं भाई। बुजुर्ग हो गए हैं तो लोग कहता है कि तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्या खराब है? कुछ नहीं होता। किसको नहीं होता है? अभी जो टिकट भी सब देने जा रहे हैं नौजवान लोग को। अच्छा, तो आपको लगता है कि इतने साल से नीतीश जी की सरकार है यहाँ पे, तो नीतीश जी ने विकास के मामले में, नौकरी के मामले में कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। नौकरी के मामले में करें चाहे नहीं करें, लेकिन बिहार के विकास के मामले में आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं किया जो किए हो। बिहार का बंटवारा नहीं न किया है नीतीश कुमार। बिहार का बंटवारा कर दिया, भिखमंगा बना दिया। अभी का जो पहले का जो सरकार था, अकेले अपने कुर्सी के चलते बिहार को बंटवारा कर दिया जी, भिखमंगा बना दिया। नीतीश कुमार ने नहीं किया है, और न ही कोई कांग्रेस किया था। कांग्रेस के आज राहुल गांधी, राहुल दा अगर दामन छोड़ देते हैं तो बिहार से उनका बिहार में फिर से दिया जल जाएगा। नहीं तो किसी का दामन थामे हुए रहेंगे तो बिहार में कभी नहीं। नीतीश जी को कुछ सीएम बनना चाहिए इस राज्य का। जनाब, इसका एज हो गया, अब चेंज होना चाहिए, जरूरी है। नया युवा को आना चाहिए, तेजस्वी को आना चाहिए, आदमियों को और सबको मौका देना चाहिए। कम से कम 5 साल तेजस्वी को देखना चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश जी ने बिहार राज्य में या चलिए आपके पटना, आपके शहर में कुछ विकास का कुछ नौकरी में विकास या शहर
विकास? विकास स्टार्टिंग में जो पहली बार आए थे 2005 में तो विकास कुछ किए हैं, उसके बाद हमने 2015-20 कोई विकास नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से देखा जाए और जनता का मैंने अभी तक सर्वे मैंने किया है तो नीतीश कुमार जी के फेवर में कोई भी जनता नौजुवक वर्ग नहीं है। क्योंकि देखिए एक एज हो गया, हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी का एक एज हो गया। नए युवा में के रूप में बहुत सारे नेता है अभी बिहार में, जैसे प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है। इन लोग को ऑप्शन देना चाहिए और यहाँ के युवाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि जो नवयुवक वर्ग है और काम के प्रति जो ध्यान दे रहा है, रोजगार के प्रति ध्यान दे रहा है, शिक्षा के प्रति ध्यान दे रहा है, उस आदमी को जिताना चाहिए, उस पार्टी को जिताना चाहिए। जाति बेसिस पर नहीं जिताना चाहिए। जाति बेसिस, वर्ग बेसिस करके आज जो चुनाव लड़ रहे हैं नेता, लेकिन ये सब गलत है। 20 साल से सरकार है। जी लगभग 20 साल। जी जी 20 साल में कुछ ऐसा फर्क नजर आया आपको बिहार राज्य में कि उन्होंने कुछ करके दिया हो? देखिए फर्क थोड़ा सा, जिसको इनिशियल हम लोग जैसे किसी को भोजन मिल गया, रोटी मिल गया, तो जिसको कुछ नहीं मिल रहा है रोटी मिल गया तो उसके लिए वो अमृत है। उसी तरह बिहार में क्या हुआ है, सिनेरियो को देखेंगे कि यहाँ रोड बहुत टूटा हुआ था श्रीमान लालू यादव प्रसाद जी के रिजिम काल में। उस समय बजट भी था, यदि पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बजट की भी कमी थी। 40% आता ही था, 60% मिलाना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में अब कहे कि रोड के वजह से हम विकास हुआ है, तो ये नहीं, विकास रोड तो बना हुआ है, जहाँ कुछ नहीं था रोड बना हुआ है। इस चीज पर मैं कहूँगा कि हाँ विकास हुआ है। लेकिन शिक्षा बिहार का इस स्तर तक गिरा चुका है कि इसको भरपाई करने के लिए पिछले 20 साल से जो लड़के प्रोडक्ट हुए हैं वो और अभी जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, इतना गिर चुका है शिक्षा कि वो कहीं ना कहीं जाकर कहीं सेटल नहीं हो पाएंगे। और वो शिक्षा, यदि एक हम शिक्षा मंत्री जो भी बिहार के प्रेजेंट में हैं, मैं कहूँगा कि पूरे बिहार के शिक्षक जितने हैं, यदि अपने बच्चे को अपने ही जिस स्कूल में एम्प्लॉई है गवर्नमेंट में पढ़ाने लगे तो शिक्षा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। देखिए हमारे उम्र 72 साल है। हम जगन्नाथ में कांग्रेस का भी शिक्षा देखे हुए हैं और लालू का भी देखे हुए हैं, जिसमें हमरा समझिए कि वैकेंसी नहीं निकलता था, उम्र चल गया। नीतीश के सरकार में वैकेंसी निकली जिसमें हम मैंने अप्लाई किए और शिक्षा विभाग में हम कार्यरत होकर अब रिटायर होला हो गया 12 साल। तो आपको लगता है कि नीतीश शिक्षा के क्षेत्र में समझिए नीतीश से बढ़िया कोई नहीं है। विकास के क्षेत्र में तो शिक्षा एक विकास का पावदान है। जब तक ले शिक्षित नहीं होइएगा, शिक्षा नहीं विकास करेगा, आप कोई चीज को आगे नहीं लेके जाइएगा। और जैसे लोग कहते हैं कि जैसे 20 साल हो गया, अब उनकी भी उम्र हो रही है, उनको तबियत खराब रहती है, तो उसके चक्कर में रहते हैं। उम्र हो गया तो उम्र पर और समझिए कि विशेष दिमाग होता है, कम उम्र वाला के छिछलापन दिमाग है। तो जैसे अभी 2 साल पहले उन्होंने आरजेडी को छोड़ के एनडीए अलायंस को अपना सारा समर्थन दिया था, तो उसको लेके क्या यहाँ पे आपको लगता है कि उस चीज को लेकर लोगों में नाराजगी है या उस चीज को लेकर? कोई नाराजगी नहीं है। दुनिया समझिए कि जहाँ देखता है थी जहाँ घुसुक जाता है। जब कह रहे हैं ना कि गड़बड़ होने लगा तो हम इससे अलगे हो गए। बनाए तो थे भुलावा में, लेकिन गड़बड़ जब करने लगा सबने घोटाला तो हम अलग हो गए। अब तो कान नहीं के कहते हैं कि हम इसी के साथ अब 5 से थे, इसी के साथ अब अंतिम हो जाएंगे। The Nalanda region is largely dominated by the Kurmi community, the same community that Nitish Kumar hails from. And then you have the Yadavs and the Muslims, who together account for more than the population of Nitish Kumar's caste. Very soon, Nitish Kumar realized that he couldn't just depend on the people of his caste alone. The Kurmi caste that Nitish Kumar hails from constitutes only 3% of the population in Bihar. And initially, in the initial stages, Nitish Kumar heavily relied on the Kurmi Kushwaha vote bank. But he soon realized that if he wants an edge over the RJD and the BJP, then he will have to broaden his vote base. And he did that. He did that by weaving support around the EBC.
by working on the ideals and principles of Karpuri Thakur. And soon, Nitish Kumar became the poster boy of the EBC, which is the largest population, which constitutes the largest population of the state of Bihar. And now two of Nitish Kumar's own creations. The extremely backward classes and Mahadalits made the JDU a sought-after ally for both the BJP and RJD, despite Kumar's political somersaults. By announcing the caste census in 2023, Nitish Kumar rebooted his politics to claim his position as a leader championing the cause for social justice. What's interesting with Nitish Kumar's caste survey move is that the fact that he not only reclaimed social justice plank, but that also projects him as a leader of the largest segment of the population in Bihar and not just a Kurmi Kushwaha leader. This is also a reminder to the RJD that Nitish Kumar commands a broader vote base. A broader vote base that constitutes 36% of the population in Bihar, unlike the MY Samikaran, Muslim plus Yadav vote base of the RJD that constitutes 32% of the population of Bihar. But today, as his party prepares for the polls and as Nitish Kumar looks to extend his reign as the Chief Minister of Bihar, are these moves having the desired political impact? नीतीश जी को तो सीएम बनना ही चाहिए। उनका जैसे अभी कोई मतलब सीएम ही नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, आप अभी देख लीजिए पटना में आप आए हैं, अभी देखिए कितना विकास हुआ है यहाँ पे। अब जहाँ भी चले जाइए आपको दिखेगा कि मतलब पटना कितना, मेट्रो अभी रिसेंट में बन गया, सारा चीज हो गया। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे नीतीश जी सीएम बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन नया चेहरा ठीक है। अभी नीतीश जी अभी तो स्वस्थ है ना, अभी कहाँ अस्वस्थ कहाँ आप उनको दिखे? अभी तो स्वस्थ है, काम तो कर रहे हैं अभी उनके काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी देखिए उनके सरकार में तो अभी बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। अभी विकास आप आँख उठा के देख लीजिए, विकास तो बिहार में इतना उतना तो हमको लग रहा है अभी कहीं नहीं हो रहा है। और इस बार जबरदस्त मतलब सरकार बनेगा। इस बार एनडीए का गठबंधन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा और अच्छा पूर्ण बहुमत से बनेगा। हाँ, नीतीश जी सीएम ऑलवेज सीएम है, वो हमारे बढ़िया है, तो क्यों नहीं होगा बताइए? आपको भी तो चाहिए कि मतलब कुछ परिवर्तन बोल रहे हैं, परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं, बट वैसा कोई है नहीं कि जिसको आप मतलब यहाँ पे देखना चाहते हैं। अभी नीतीश जी सही है, अभी जब तक रहेंगे ठीक है। वो अभी नहीं, राज्य की बात करते हैं तो नीतीश इज ऑलवेज राइट। वो नीतीश जी को सरकार बनना चाहिए, आनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे चीज काम किए। सवाल बड़ा स्पष्ट है कि क्या एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एनडीए की सरकार ही नहीं बनेगी और सरकार अगर किसी तरह से 1% कहीं पे चूक हुई जनता से तो सीएम नीतीश कुमार कतई नहीं बन सकते। चूंकि ये पूरी बिहार की जनता जान चुकी है कि सीएम नीतीश कुमार जी 2022 से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से थक चुके हैं। उनके कुछ मंत्री लोग हैं जो पूरी तरीके से पूरे बिहार को चला रहे हैं और मंत्री लोग इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है कि 2-2 हजार करोड़ के पुल गिर जा रहे हैं। पूरी तरीके से बिहार की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। ये सदी का सबसे बड़ा, सदी माने 100 साल होता है, ये बिहार के लिए सदी का सबसे बड़ा घोटाले का राज चल रहा है। पैसा उगाही का जो है सो राज बन गया है। तो इन सब चीजों को देख के जनता पूरी तरीके से यह आश्वस्त है कि नीतीश कुमार को बदल देना है। एनडीए जीते ही कि नहीं और ना नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। तो आपको लगता है कि वो सीएम बनना चाहिए? नहीं, उन्होंने विकास कोई विकास क्या, गांव में जाके देखिए ना, ये तो जो भी सेंट्रल का विकास जो किए हैं ये तो अपने फायदे के लिए किया है ना। सरकार उस पर गाड़ी दौड़ाती है अपना, हाँ, सेंट्रल वाला, तो विकास हुआ। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से जो माल ढोता है तो हमारा बिहार भी एंड है उसमें, तो इसको विकास नहीं बोला जाता है। आपको एक आवासीय बनाने के लिए जाइएगा तो 200 रुपया लेगा। बिल्कुल होना चाहिए नीतीश कुमार का चेहरा, लेकिन शर्त है जनता का शर्त है, जब वो सीएम बन जाए तो फिर पलट के किसी और दूसरे पार्टी में नहीं जाए। तो इसी अब इसमें तो छोड़ करके फिर चले गए दूसरे पार्टी में, ये गलत होगा। लोगों को कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं सीएम बनेंगे तो इसमें परमानेंट 5 साल रहेंगे कि फिर 1 साल के बाद कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। फुल्ली 100% भरोसा नहीं रखता है पब्लिक। सोच रहा है अभी कि क्या करें। तो डेवलपमेंट इनको उतना तो ही नहीं कर पाए जो पब्लिक चाहती है। नंबर 1 की सड़क के मामले में ठीक डेवलपमेंट किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कि ये एजुकेशन के मामले में डेवलपमेंट नहीं किए हैं,
जो चाहती है पब्लिक कि सरकारी स्कूल भी उसी तरह रन करे जैसे यहाँ प्राइवेट स्कूल करे। तो इसका रास्ता निकालने के लिए तो गवर्नमेंट को होना चाहिए वैसा कैसे हम बनाते हैं कि ताकर के लोग सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ना लेके गवर्नमेंट के स्कूल की तरफ भागें। And as we concluded our Nalanda visit, one thing was certainly clear. The people of Nalanda may have some issues with his switches between alliances, and some may even feel Nitish may have made some mistakes along the way. But the people of Nalanda are still firmly standing behind Nitish Kumar. But will this be the sentiment across the rest of the state? Only time will tell. And that's all we could pack for you in this episode of Election Yatra. We'll be back tomorrow, same time, with Election Yatra, the Bihar edition, only on Times Now.